بھارتی شہر احمد آباد میں مسافر طیارہ گر کر تباہ، عملے کے 12 ارکان سمیت 250 سے زائد مسافر سوار تھے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایئر انڈیا کا طیارہ احمد آباد سے لندن جا رہا تھا۔ حادثہ 1 سے 2 بجے کے درمیان پیش آیا۔ حادثے کے بعد احمد آباد ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بند، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ پاکستان کا موقف سچ پر مبنی اور تگڑا ہے، چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری کا بی بی سی کو انٹرویو۔ کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات کو امریکہ میں مانا جاتا ہے۔ امریکہ کو معلوم ہے ہم دہشت گرد گروہوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ بھارت نے پاکستان کا پانی بند کیا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اہم شراکت دار ہے۔ پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف مثبت اور فعال کردار کی پوری دنیا متعارف ہے۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو اہم شراکت دار قرار دے دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو سراہا۔ کہا پاکستانی حکام نے انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے امریکہ کو کئی اہم کامیابیاں دلائیں۔ پاکستان کی شراکت داری عالمی تناظر میں انتہائی اہم اور مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ اماراتی قومی سلامتی کی مشیر نے استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی، عطا تاڑر اور معاون خصوصی طارق فاطمی وفد میں شامل۔ گورنر سلیم حیدر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے غزہ میں جاری ظلم اور بے گناہ انسانوں کے قتل کو روکنے اور جنگ بندی کی اپیل۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر کی ملاقات۔ امریکی ناظم الامور کی گورنر کا پیغام ٹرمپ تک پہنچانے کی یقین دہانی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم، 100 انڈیکس 1,24,870 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ 100 انڈیکس 517 پوائنٹس کا اضافہ، 199 کمپنیز کی حصص میں اضافہ، 256 کمپنیز کی حصص میں کمی اور 17 کمپنیز کی حصص مستحکم۔ مارکہ بنیان المرصوص کی کاری ضرب کھانے کے بعد مودی حواس باختہ، بھارت کے جنگی جنون میں بتدریج اضافہ۔ مودی اب بھی خطے میں اجارہ کے خوابوں میں مگن۔ بھارتی فضائیہ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے مودی کا بہت بڑی رقم خرچ کرنے کا منصوبہ منظر عام پر۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت 10,000 کروڑ روپے سے آئی اسٹار پروجیکٹ کے 3 جہاز خریدے گا۔ بھارت کا مقصد ہندوستان کی فضائی صلاحیتوں کو بڑھانا اور خطے میں اجارہ داری قائم کرنا ہے۔ بزنس ٹوڈے کے مطابق اس بھارتی پروجیکٹ میں 10,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری شامل ہے۔ مودی کا جنگی جنون، بھارت کی جدید ہائپرسونک میزائل کے تجربے کی تیاری۔ پاکستان کے خلاف ممکنہ جارحیت کی نیت سے بھارت تیزی سے حملہ آور نظام کی تیاری میں مصروف۔ جدید ہائپرسونک میزائل کی تیاری اس بات کا واضح اشارہ ہے۔ زی نیوز کے مطابق بھارت سب سے جدید ہائپرسونک میزائل کی آزمائش کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ منصوبہ ڈی آر ڈی او کے خفیہ پروگرام پروجیکٹ وشنو کے تحت تیار ہوا ہے۔ میزائل کو ایشیا میں طاقت کے توازن کے بدلنے والا گیم چینجر قرار دیا جا رہا ہے۔ میزائل بھارت کو دشمن کے علاقے میں چند منٹوں میں انتہائی مہلک حملہ کرنے کی صلاحیت دے گا۔ رفتار آواز کی رفتار سے 8 گنا زیادہ ہے۔ عالمی سطح پر بھارت کی اسٹریٹجک ناکامی، مودی کی ناقص حکمت عملی۔ سابق بھارتی قومی سلامتی کے مشیر کے نشانے پر شیو شنکر نے پہلگام واقعہ اور آپریشن سندور کے حوالے سے سخت سوالات اٹھائے۔ کہا پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارت عالمی بیانیہ قائم کرنے میں ناکام رہا۔ پاکستان نے فوری طور پر واضح ثبوت اور شواہد کے ساتھ بین الاقوامی میڈیا کے سامنے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی۔ مودی کی سست اور کمزور سفارتی حکمت عملی نے عالمی سطح پر بھارت کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ مودی سرکار کی ہر حملہ جنگ ہے، پالیسی خطرناک ہے جو بھارت کو سخت گیر اور محدود پالیسیوں میں جکڑ دیتی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران مودی سیاست بیانات عالمی سطح پر بھارت کی پالیسی کو غیر معتبر بنا دیتے ہیں۔
मोदी का जंगी जुनून और भारतीय मईशत की सुस्त रवि, जंगी महाज और सफारती सतह पर नाकामी के बाद भारत के लिए मुआशी मैदान से भी बुरी खबरें आने लगी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और पड़ोसी ममालिक के साथ कशीदगी ने भारत की मईशत को खतरात से दो चार कर दिया। मोदी के हिंदू तवा नजरिए और जंगी जुनून ने आलमी सरमायाकारों को भारत आने से खौफ में मुब्तला कर दिया। भारतीय अखबार दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने माली साल 2025-26 के लिए भारत की इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार कम करके 6.3% कर दी। रवा साल जनवरी में ये शरह 6.7% मुतवक्किल की गई थी। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए SIFC की सहूलतकारी के बायस मिनरल्स कॉम्प्लेक्स का क़याम। SIFC के ताउन से मादनियात की एक्सप्लोरेशन के लिए मिनरल्स कॉम्प्लेक्स कायम कर दिया गया। इंफॉल ग्रुप के तहत मिनरल्स कॉम्प्लेक्स का क़याम अमल में लाया गया है। इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान की केमिकल दरामद में सालाना $2.9 बिलियन की बचत मुतवक्किल है। ये मंसूबा रॉक सॉलिड समेत अहम केमिकल्स की बरामदात के नए मौके फराहम करेगा। मोदी की कठपुतली हसीना वाजिद खत्ते में बेअमनी और इंतशार का बायस। गुज़िश्ता साल बांग्लादेश के सियासी बहरान में मोदी ने जलती पर तेल का काम किया है। मोदी बांग्लादेश में अमन के बजाय कशीदगी को हवा देता दिखाई दिया। मोदी के सोचे समझे एजेंडे को इसकी कठपुतली हसीना वाजिद ने सरअंजाम दिया। बांग्लादेश के हालिया बहरान में मोदी का इश्तियाल अंगेज और गैर ज़िम्मेदाराना रवैया खत्ते में बेअमनी पैदा करने की वाज़ेह मिसाल है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मैंने मोदी से दरख्वास्त की कि शेख हसीना को बांग्लादेश में ऑनलाइन नफरत अंगेज तकारीर से रोकने में मदद करें। मोदी ने खामोश तमाशाई बनते हुए जवाब दिया कि ये सोशल मीडिया है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। मोदी का गैर संजीदा जवाब एक धमाका खेज सूरत-ए-हाल से जान छुड़ाने की कोशिश थी। मोदी का रवैया न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरे जनूबी एशिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इजराइल किसी भी वक्त ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला कर सकता है। इजराइल ने वाशिंगटन को पेश की इत्तला दे दी। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में इजराइल के ईरान पर मुमकिन हमले के पेश नज़र हाई अलर्ट है। अमरीकी महकमा खारजा के मशरिक़ वस्ता से अपने सफारती मिशन के अमले में कमी करना शुरू कर दी। जंग हुई तो तमाम अमरीकी फौजी अड्डे हमारे निशाने पर होंगे। ईरान ने अमरीका को खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नासिर ज़ादे ने कहा, उम्मीद है नौबत लड़ाई तक नहीं पहुंचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। हमले की सूरत में अमरीका को इस खत्ते से निकलना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म हतमी फैसला करेंगे। IMF के सख्त प्रोग्राम के बावजूद लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की। मरियम नवाज चाहती हैं टैक्स ना देने वालों को टैक्स नेट में लाया जाए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं वज़ीर आला ने तमाम नए टैक्स की तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। पंजाब के तमाम प्रोजेक्ट्स हुकूमती वसाइल से पूरे हो रहे हैं। इस वक्त पंजाब में वफाक का कोई मनसूबा नहीं है। 11 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सिंध में बदतरीन करप्शन होती है। 2 करोड़ 92 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। गोश्त स्कूलों में करप्शन का बाजार गर्म है। तालीम महंगी हो रही है। वज़ीर आज़म कहते हैं एमरजेंसी लगाएंगे। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहों में 500% इजाफा किया गया। सोलर पैनल पर भी टैक्स आयद कर दिया गया है। कम अज़ कम तनख्वाह का कोई जिक्र नहीं। किसानों के साथ जुल्म किया गया। फाइव न्यूज़ की बजट 2025-26 पर खुसूसी नशरियात। सनतकार, ताजरों समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। ताजरों का वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बेशतर ताजर रहनुमाओं ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। मईशत की बेहतरी के लिए तजावीज़ भी दी।
यही तो दुख है, हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों की कदर नहीं। जज सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत का रियाजी माहिर असिस्टेंट प्रोफेसर से रियाजी मजमून वापस लेकर इंजीनियरिंग के मज़ामीन पढ़ाने का टास्क देने से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट की जानिब से आए जुर्माने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। इब्तिदा से तो लगता है कि यूनिवर्सिटी बंद कराना चाहते हैं। अगर यूनिवर्सिटी बंद हो गई तो आप कहाँ जाएंगे? अदालत का असिस्टेंट प्रोफेसर से मुकालमा। असिस्टेंट प्रोफेसर ने कहा, मैं रियाजी पढ़ाने का माहिर उस्ताद हूँ। इंतजामिया ने मरकजी मजमून वापस लेकर इंजीनियरिंग के मज़ामीन पढ़ाने का टास्क दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया तो जुर्माना आयद कर दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ असिस्टेंट प्रोफेसर की दूसरी दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। बच्चों के हाथ में औजार नहीं किताब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों से जबरी मुशक्कत के इंसदाद का दिन। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की मजमूई शरह 16.9% रिकॉर्ड। चाइल्ड लेबर में इजाफे की बुनियादी वजह गुर्बत करार। माहिरीन के मुताबिक घरेलू मजदूरी में चाइल्ड लेबर को संगीन मसला करार दे दिया। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बच्चों से जबरी मुशक्कत के इंसदाद के दिन पर पैगाम। आसिफ जरदारी ने कहा, यह दिन बच्चों को मुशक्कत और इस्तेहसाल से बचाने की इज्तिमाई जिम्मेदारी की याद दहानी है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक आदमी चैलेंज है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर बच्चों से मुशक्कत के खिलाफ शाना बशाना खड़ा है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कोशिशें तेज करने की ज़रूरत है। बच्चे मेरी रेड लाइन हैं, चाइल्ड लेबर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बच्चों से जबरी मुशक्कत के इंसदाद के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा, आज के जदीद दौर में भी चाइल्ड लेबर के वाक़यात इंसानियत के लिए एक अलमनाक हकीकत है, जो मुआशरे के बाशऊर अफराद के लिए लम्हा फिक्रिया है। बच्चों के हाथ में कलम, किताब और लैपटॉप होने चाहिए, औजार और ईंटें नहीं। अगर हम अपने मासूम बच्चों का बचपन महफूज ना बना सके तो आने वाले कल में हमारा मुआशरा मुफीद शहरियों से महरूम रह जाएगा। आज के दौर में मस्नूई ज़हानत का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। डेटा डिजिटल इनकलाब की बुनियाद है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का पाकिस्तान ओपन डेटा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुस्तन डेटा की बुनियाद पर ही पायदार तरक्की का हुसूल मुमकिन है। डेटा के जरिए माहौलियाती चैलेंजेस का जायजा लेते हुए इक़दाम किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के अहले खाना के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसी हाज़री। मस्जिद नबी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रियाजुल जन्नह में नवाफिल और दुआओं की सादत हासिल की। मुल्की सलामती, मुआशरी इस्तेहकाम और अवामी खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान पाकिस्तान के ताबनाक मुस्तक़बिल के लिए भी दुआएं की। और आईसीसी ने खिलाड़ियों की T20 रैंकिंग जारी कर दी है। टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। बैटर्स में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली और भारत के अभिषेक शर्मा की दूसरी पोजीशन बरकरार। बॉलर्स की रैंकिंग में न्यूजीलैंड के जैकब डैफी की पहली पोजीशन। T20 ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में भारत के हार्दिक पांड्या का पहला नंबर बरकरार।